السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہمارا آقا و مولا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رغبت شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لگا لے جلوائے کعبہ، توجہ میری، سب آرام سے اپنی قیمتی وقتوں کو، ٹائم کو یہاں پر دے رہے ہیں۔ میں قیمتی باتوں کو سنانے کی کوشش کروں گا، توجہ ہو۔ شاعر کہتا ہے، لگا لے جلوائے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، لگا لے جلوائے کعبہ مجھے بھی اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، جلانے سے جہنم یہ کہہ کے انکار کر دے گا، جلانے سے جہنم یہ کہہ کے انکار کر دے گا، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، بے شک سبحان اللہ، واہ، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے۔ اور آگے شاعر کہتا ہے، ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ مجھ کو دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ مجھ کو دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے۔ اور موضوع کی طرف میں دو شعر کہنا چاہتا ہوں جو میں نے ٹاپک لیا۔ شاعر کہتا ہے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمان، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ کیا بات ہے، 42 لاکھ شکر ہے، اور یہ فخر کی بات بھی ہے پورے بیگم گنج والوں نے الحمدللہ یہ خوبصورت جلسہ کا انعقاد کیا، سجایا، رچایا۔ آج پورے بیگم گنج میں 6000 پورے بیگم گنج 6000 لوگ کی آبادی، مسلم کمیونٹی کے 6000 لوگوں کی آبادی ہوگی، مگر اتنا وراٹ جلسہ میں، اتنے خوبصورت عظیم الشان جلسہ میں چند ہی لوگ نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو آنے اور سمجھنے کی توفیق دے، بولیے آمین۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، کیونکہ وقت کمی ہے تو چند باتیں میں کروں گا، آپ اپنے دماغ کی میموری میں سیو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ملائیں، اپنے سماج کو دیکھیں، ہمارا سماج کہاں چلا گیا، ہمارا معاشرہ کہاں چلا گیا۔ خیر، اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ وہ لوگ جو اپنی ہدایت کو
गुमराही के बदले बेच दिए, उनकी तिजारत, उनका बिजनेस, उनकी ये तिजारत उसे फायदा देने वाली नहीं है और ना ही वो हिदायत पाने वाले हैं। शायद कि आप नहीं समझ रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान हम सब मुसलमानों का ईमान की जड़ है, कुरान अल्लाह की किताब है, हम मोमिनों की जान है। कुरान की फरमान पर ईमान लाना हम मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं, फर्ज है, फर्ज आइन है। अगर कुरान की एक हर्फ में कोई ईमान नहीं लाया और उसका इनकार किया तो मुसलमान नहीं रहेगा, वो काफिर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सभी मुसलमान हम जो हैं कुरान की एक एक नुक्ता, एक एक जबर जेर पर ईमान रखने वाले हैं। कुरान फरमाता है उलाइका लज़ीना इश्तरऊ ज़लालता बिल हुदा, वो लोग जो हिदायत को, अपने ईमान को, हिदायत मतलब ईमान को बेच देते हैं। किसके बदले? गुमराही के बदले, बददीनी के बदले, झूठ बोलकर, मक्कारी करके और गीबत चुगली करके जो अपने ईमान को बेच देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये ईमान का बेचना जो तुम ईमान को बेच करके गुमराही लेते हो, खराब आदतें लेते हो, ये जो है तुम्हारा बिजनेस, ये तुम्हारी तिजारत में फायदा नहीं देगी, बल्कि वो लोग हिदायत पाने वाले ही नहीं है। आयत मुबारक नाज़िल हुआ मुनाफिकों के लिए। मुनाफिक समझे? मुनाफिक कहते हैं दिल में कुछ और सूरत में कुछ, दिल में कुछ सूरत में कुछ, उसे मुनाफिक कहा जाता है। एक है निफाक यानी जिसको कहते हैं आदत, एक है मुनाफिक यानी साहिब आदत। निफाक का मतलब क्या अंदर जो है कीना रखना, और मुनाफिक यानी कीना रखने वाला। अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों के लिए कुछ आयतों को दिया है, कुछ निशानियों को दिया है। क्या क्या वो निशानी है? अल्लाह इसी कुरान की आयत से पहले फरमाता है ए लोगों, झूठ मुनाफिकों की आदत है, धोखा देना मुनाफिकों की आदत है, जो है झगड़ा लड़ाई करना मुनाफिकों की आदत है। ए लोगों, बेवकूफी करना ये मुनाफिकों की आदत है। अब समझ जाए ये जो चीजें हैं, ये जो कल्चर है, ये जो आदत है झूठ बोलना, ये मुनाफिक की आदत। मुनाफिक का माना क्या हुआ? दिल में कुछ, जबान में कुछ, दिल में कुछ, जबान में कुछ। आपसे मैं दुश्मनी रखता हूँ मगर ऊपर पर दोस्ती करता हूँ, इसे कहा जाता है निफाक, इसे कहा जाता है मुनाफिक। इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल पाक मोहम्मद अरबी हिफ़्ज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए थे तो उनमें कलमा पढ़ने वाले बहुत लोग थे, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऊपर जबान में कलमा पढ़ते थे, नबी के पास मुसलमान ईमान होने का दावा करते थे, लेकिन काफिरों के पास जाकर के वो बदल जाते थे, काफिरों जैसी आदत रख लेते थे। इस्लाम झूठ बोला मुनाफिकों की आदत है। पहले के जमाने के मुनाफिक, समझ जाइए, पहले के जमाने के मुनाफिक, पहले के जमाने के मतलब रसूल के जमाने के मुनाफिक वो काफिर थे। अभी के मुनाफिक अगर हो तो ईमान रखता है मगर दज्जाल होगा, मगर वो कज़्ज़ाब होगा, मगर वो धोखाबाज होगा, वो जो है गुनहगार होगा। ये गुनहगार इंसान अगर एक गुनाह को बार बार करता रह जाए ना तो ईमान कमजोर पड़ जाता है, ईमान कमजोर पड़ जाता है। देखा नहीं एक जमाने में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयतें नाज़िल हुई मुनाफिकों के बारे में तो झूठ बोला था, और झूठ मुनाफिकों की आदत है। झूठ एक फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री समझे, जहाँ से चीज तैयार होती है उसको फैक्ट्री कहते हैं, जिसको कंपनी यानी वहाँ से चीज तैयार होती है। झूठ इंसान की सबसे बड़ी कंपनी गुनाहों की कंपनी है, गुनाहों की फैक्ट्री है। ए लोगों, झूठ से बचो, क्योंकि ये मुनाफिक की आदत है, ये लोग गैर मुस्लिमों की आदत है, ये दूसरे लोगों की आदत है। इस्लाम झूठ बोलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठे लोगों पर खुदा की लानत है, यानी मुनाफिकों की आदत है। इस्लाम आगे कुरान ने कहा धोखा देना, ये धोखा जो है ना मुसलमानों की आदत नहीं, ये मुसलमानों की नहीं, ये जो है गैर मुस्लिमों की आदत है, मुनाफिकों की आदत है। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने कहा, एक आदमी ने कहा मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ, बस मैं चंद मिनट में आ जाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर इंतजार करते रहे, चंद मिनट का इंतजार करते हैं, वो आएगा, मुझसे बात कहेगा, मुझसे बात बोलेगा, मगर 1 घंटा गुजर गया, 2 घंटा गुजर गया,
3 घंटा गुजर गया, 1 दिन गुजर गए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 3 दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए, मगर वो आदमी आया नहीं। इब्राहिम इस्लाम समझ जाओ, हमारे आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद मिनट की जगह वो 1 दिन बैठ रहे, 2 दिन बैठ रहे, 3 दिन बैठ रहे, कई दिन बैठ रहे। बहुत कई दिन बैठने के बाद वो आदमी वापस आया और कहने अल्लाहु अकबर, हुजूर मैंने तो अपना वादा भूल गया था, मैं तो वादा भूल गया था। मतलब उसका ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आजमाना था, नबी को परखना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वादे पे कायम रहते हैं कि नहीं। मगर हमारे दरमियान अगर कोई वादा कर लिया जाता है, लोग उसको भुला देते हैं। देखता है जिससे मैंने वादा किया अपना फायदा है कि नहीं, अगर फायदा है तो उसके पास वादा पूरा करने आता है, अगर वादा नहीं, अगर फायदा नहीं है तो वादा पूरा नहीं करता, धोखा देता है। ये धोखा देना एक मुनाफिकों की आदत है, एक गैर मुस्लिम की आदत है। इब्राहिम इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, ए लोगों, धोखा के साथ साथ जो मुनाफिकों की आदत है बेवकूफी, बेवकूफी यानी अक्लमंदी से नहीं, बेवकूफ अक्ल को यूज ना करना, अक्ल को इस्तेमाल नहीं करना। जितने लोग दुनिया में बसते हैं ना जाने कितने लोग, 700 अरब लोग दुनिया में है, 700 करोड़ 700 करोड़ दुनिया में लोग मौजूद हैं, यानी 7 अरब लोग दुनिया में मौजूद है। हर कंट्री में इस्लाम मौजूद है, हर देश में इस्लाम मौजूद है, मुसलमानों की आबादी मौजूद है। ये किसकी बदौलत है? हमारे आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बदौलत है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदतों को दिखाया, अपनी बोलियों को दिखाया। उनकी बोली की वजह से गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लेते थे, उनकी आदत की वजह से गैर मुस्लिम इस्लाम को कबूल कर लिया करते थे। इब्राहिम इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बरसों पहले एक नबी थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, और एक नबी थे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नमरूद एक बादशाह था, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में फिरौन एक बादशाह था। उन फिरौन बादशाह और नमरूद बादशाह ने क्या किया? अपने आप को खुदा होने का दावा, क्या होने का दावा किया? खुदा होने का दावा किया, अपने आप को माबूद होने का दावा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, हमारे आपके नबी से पहले मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी आए दुनिया में लोगों को जो है दीन जो है सिखाते गए, यानी एक खुदा का इस्लाम को सिखाते गए, एक खुदा की पहचान सिखाते गए। उस वक्त जो है एक बादशाह ने कहा, फिरौन बादशाह ने कहा, मैं खुदा हूँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम खुदा कैसे हो सकते हो? तुम्हें जो है बुखार आता है, तुम्हें बीमारी आती है, खुदा वो होगा जो बगैर ऐब को पैदा हुआ, बगैर ऐब के होगा। यानी खुदा का मतलब यह है सारी चीज का बनाने वाला उसको किसी ने नहीं बनाया, सारी चीज का पैदा करने वाला उसको किसी ने पैदा नहीं किया। अल्लाह के अलावा जितनी भी चीजें हैं, चाहे आसमान रहे या जमीन रहे, चांद सूरज रहे या फरिश्ते रहे या कोई और मखलूक रहे, सारी चीज खत्म हो जाएगी, ये खुदा बाकी रहेगा। आखिर बाकी क्यों रहेगा? सवाल पैदा होता है, खुदा क्यों बाकी रहेगा? फरिश्ते क्यों नहीं बाकी रहेंगे? या आसमान क्यों नहीं बाकी रहेगा? या जमीन क्यों नहीं बाकी रहेगी? मतलब उसका ही है, आप जरा सोचिए, अल्लाह पैदा नहीं किया गया है, अल्लाह बनाया नहीं गया है, अल्लाह ना पैदा किया गया है ना अल्लाह बनाया गया है। जो चीज पैदा होती है, जो चीज बनती है, वो खत्म होने वाली है। खुदा ना पैदा हुआ है ना खुदा बना है, इसलिए अल्लाह हमेशा रहेगा। जो चीज बनती है, जो चीज पैदा होती है, वही चीज खत्म होगी। ये फरिश्ता पैदा किया गया है, ये आसमान बनाया गया है, ये जमीन बनाई गई है, सारी चीज बनाई गई है। ये फिरौन तू भी बनाया गया, तू भी किसी का बेटा नजर आता है, तू किसी का बेटा है, तेरा बाप का भी कोई बाप है, तू कैसे इंसान है? एक इंसानी है, कोई एक मखलूक ही है, तू खुदा नहीं। इब्राहिम इस्लाम फिरौन ने दो आदमी को बुलाया और कहा, देखो मैं खुदा होने का दावा इस तरीके से करता हूँ। दो आदमी में से एक आदमी को उसने मार डाला, एक आदमी को उसने छोड़ दिया, कहा देखो मैं खुदा वो हूँ, एक इंसान को मारता भी हूँ, दूसरा इंसान को छोड़ता हूँ, यानी जिंदगी मौत मेरे हाथ में है। किसने कहा? फिरौन बादशाह ने कहा जिंदगी मौत मेरे हाथ में है, मैं मौत भी देता हूँ और जिंदगी भी अता करता हूँ। देखो एक को मैंने मौत दे दिया है, दूसरे को मैंने जिंदगी अता की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया,
अच्छा तुम खुदा ये हो तो बताओ मेरे खुदा वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। अगर तू खुदा है तो पश्चिम से सूरज निकाल और पूरब में डुबा। अल्लाह, पश्चिम से सूरज उगा और पूरब में डूबा, मगर वो बादशाह जो है खामोश हो जाता है, खामोश हो जाता है। क्यों? बेवकूफी की वजह से। वो खुद समझता था मैं इंसान, मैं किसी का जो है बेटा हूँ, मेरी कोई माँ है, तो पर भी इंसान समझा नहीं। राम इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला ने मुनाफिकों की आदत में इरशाद फरमाया, उलाइकल लज़ीना इश्तरऊ ज़लालता बिल हुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। वो लोग जो ईमान को गुमराही के बदले में बेचते हैं, गलत कामों के बारे में बेचते हैं, उनकी ये बिजनेस उसे फायदा नहीं देगा, आखिर वो हिदायत पाने वाले ही नहीं है। राम इस्लाम आप देखिए, हम सब मुसलमान हैं, ईमान के पक्का सिकादार, पक्का जो है मोमिन नजर आते हैं, मगर अपने दिल में हाथ लगा के सोचो, कभी आपने झूठ बोला, झूठ जो है हमारे आपके अंदर मौजूद है। कभी आपने धोखा दिया, आप जरा सोचो, धोखा हमारे आपके अंदर मौजूद है। कभी आपने जो है वादा खिलाफी किया, हमारे आपके अंदर मौजूद है। ए लोगों, फिर हमारे अंदर जो ईमान है वो ईमान कहता है इन चीजों से तौबा कर, अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल करने वाला है। मरते दम तक इंसान को जो है अल्लाह तबारक व तआला मौका देता है, मगर खुशकिस्मत वो लोग होते हैं जो अल्लाह के ये जो आवाज पा अल्लाह की तरफ से ये सदा पाकर, ये वार्डर पा करके तूब इलल्लाह तौबतन नसूहा, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो, अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। ये इंसान, अगर हम मुसलमान अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेते हैं, खुशकिस्मत वो इंसान है जो मरने से पहले तौबा कर लिया। बदबख्त वो लोग हैं जो हजार मौलवियों की तकरीर के बजाय नसीहत करने के बजाय कहने के बावजूद उसे तौबा नसीब नहीं होती, तौबा नसीब नहीं होती, वो इंसान बेगर तौबा करके मर जाता है। उसका हिसाब व किताब क्या होगा? राम इस्लाम देखिए, सिर्फ मुसलमान होना सबसे बड़ी बात नहीं है, ईमान की हिफाजत करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे आपके अंदर ईमान मौजूद है, इसकी हिफाजत करना हमारे आपकी जिम्मेदारी है। आसमान से फरिश्ता नहीं आएंगे आपके ईमान की हिफाजत के लिए, कोई और नबी पैदा नहीं होगा आपकी ईमान की हिफाजत के लिए, बल्कि खुद की ये चीज है, खुद को आपको हिफाजत करना होगा। हाँ, रोशनी ले सकते हैं, आलो ले सकते हैं, नूर ले सकते हैं, इनसे ये तकरीर के जरिए से, मौलाना मौलवियों के तकरीर के जरिए से, और इसी मौलवियों के तकरीर और इन मौलवियों के जरिए से आप लोगों ने एक मदरसा कायम किया है, ताकि इसी जरिए से एक रोशनी फूले, एक रोशनी फूटे और आपके दरमियान ये रोशनी जाए, लोगों के दरमियान जागरूकता पैदा हो, इस्लाम की बातें पहुंचती हो। आप खुशकिस्मत है, आपके दियार मुबारक में आपने खूबसूरत एक मदरसा कायम किया है। अल्लाह तबारक व तआला सभी को मदरसा में दान देने और उसकी हिफाजत करने की तौफीक दे। बोलिए आमीन आमीन आमीन। मुसलमान होना और नमाज पढ़ना, दुआएं करना नहीं, अपने अंदर सबसे चीज जो इबादत के साथ साथ आपकी इबादत कबूल होती नहीं, आप खुद समझ सकते हैं। आप जन्नती है या जहन्नम खुद ही समझ सकते हैं, आप जन्नती है कि जहन्नमी है। आप जरा सोचो, आपने गुनाह किया, क्या आपका दिल कभी रोया मैंने फला गुनाह कर लिया है, अब मैं नहीं करूंगा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अगर इंसान गुनाह कर लिया, गलत काम कर लिया और उसके बावजूद उसका दिल कांपा नहीं, अल्लाह की बारगाह में तौबा नहीं किया, तो समझ जाओ ऐसे इंसान जहन्नम का ईंधन है, जहन्नम की लकड़ी बनने वाली है। और अगर वो इंसान गुनाह कर लिया, दिल कांप गया, अल्लाह अल्लाह और गुनाह दोबारा नहीं करूंगा, अल्लाह की बारगाह में सच्ची दिल से तौबा किया, तो समझ जाओ वो इंसान जन्नत वो इंसान जन्नती है। ये इंसानों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक इंसान था जिसका नाम इब्ने बलआम, वो बहुत ज्यादा इबादत करता था, खुदा को वहदहू ला शरीक की इबादत इतनी करता था, अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादत की वजह से दुआ कबूल कर लिया करता था। अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल करता था, लोग उसको मुस्तजाब दावत कहते थे, यानी दुआ उसकी कबूल हो जाती जब भी रब की बारगाह में हाथ उठाता, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब दीन की प्रचार करने लगे, एक खुदा के डंका लोगों को देने लगे, लोगों को एक खुदा की तरफ बुलाने लगे, उनमें से कुछ दुश्मन हो गए। हर होता है, हर अच्छे काम में बुरा इंसान आपका दुश्मन होगा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते जाइए। बुरा इंसान का मुंह काला होगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके नेक कामों को कबूल फरमा, बेशक आपके नेक कामों को
कबूल फरमाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे, अल्लाह तबारक व तआला के भेजे हुए नबी थे। उनके दुश्मन ने कुछ साजो सामान लिया, कुछ रुपया पैसा लिया, धन दौलत लिया और उस इंसान के पास चला गया जिसकी दुआ कबूल होती थी, रब की बारगाह में कबूल की जाती थी। सारी दौलत लेकर गए किसके पास? इब्ने बलआम के पास। याद रहेगा नाम, इब्ने बलआम। इब्ने बलआम बहुत इबादत करता था, दुआ कबूल होती थी। देखा हजरत मूसा के दुश्मनों ने दुआ उसकी कबूल होती है, बहुत सारी दौलत लेकर के इब्ने बलआम के पास गया और कहने लगा, ये इब्ने बलआम देखते हो ये सारी दौलत, सोना चांदी, ये सारी जायदाद तेरी हो जाएगी, बस एक बात सुन ले। वो इब्ने बलआम ने कहा, बात क्या है? इब्ने बलआम सोना चांदी रुपया पैसा धन दौलत दे करके उसका दिल पिघल गया। वो जो है खुशी से फूले न समा रहा था, आखिर इतनी दौलत आई कहां से? ये उन लोगों ने कहा, हजरत मूसा के दुश्मनों ने कहा, ये इब्ने बलआम सुनो, ये सारी दौलत पालोगे तो पूरी दुनिया के राजा बन के रहोगे, राजा। एक बात सुन ले, मूसा के खिलाफ रब की बारगाह में, अपने खुदा की बारगाह में दुआ कर दे, बददुआ कर दे, सारी दौलत तुम्हें दे दी जाएगी। अल्लाहु अकबर। इब्ने बलआम ने कहा, अल्लाहु अकबर, आखिर दुआ किसके खिलाफ करूं? वो मूसा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ, मूसा के लिए बददुआ करूं जो खुदा की दावत देते हैं। एक तरफ उसकी लालची पड़ जाएगी, लालच बुरी चीज है, लालच बुरी चीज है। इब्ने बलआम एक तरफ मूसा की अहमियत को देखते थे, उनके रुतबा को देखते थे, उनका मर्तबा को देखते थे, दूसरी तरफ दौलत को देखते थे, मगर लालच ने हजरत मूसा के मर्तबा को छोड़ दिया और लालच उन सारी दौलतों की तरफ नजर टिक गई और कहा, अच्छा इसी बात है, सारी दौलत मेरी हो जाएगी? कहा कि हाँ, सारी दौलत मेरी तेरी हो जाएगी। उन लोगों ने सारी दौलत उसके हवाले कर दिया। किसके? इब्ने बलआम के। सारी दौलत उसके हवाले किया और हवाले करने के बाद कहा कि आप दुआ करो। सब लोग जो है हाथ उठा करके दुआ के, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल नहीं फरमाया और फरमाया क्या? ए इंसान, जान लो दुनिया के लोगों को खुदा ने बता दिया। हमारे आपके नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब महशर का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे। ऐसी सूरत में एक जानवर को कुत्ता बना करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा और एक इंसान को, एक जानवर को इंसान बना करके जो है जन्नत में डाल दिया जाएगा और एक इंसान को कुत्ता बना करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्या बात है, वाह। एक जानवर को इंसान बना करके जन्नत में और एक इंसान को कुत्ता बना करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनो, इब्ने बलआम दुनिया में था, इब्ने बलआम दुनिया में था, नबी के खिलाफ आवाज उठाया, नबी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, नबी के खिलाफ बददुआ किया। अल्लाह तबारक व तआला उस महशर के दिन उस इंसान को कुत्ता बना करके जहन्नम में डाल दिया। और एक कुत्ता था, वो भी कुरान ने इरशाद फरमाया, एक कुत्ता था असहाबे कहफ का। असहाबे कहफ नबियों के मानने वालों के साथ, अल्लाह के इबादत करने वालों के साथ चंद दिन रहा। वो कुत्ता अल्लाह का प्यारा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला उस कुत्ता को महशर के दिन इंसान बना करके जन्नत में डाल दिया, जन्नत अता फरमाएगा। ए लोगों, इबादत सबसे बड़ी चीज नहीं है, सबसे बड़ी चीज है आदत। आदत आपकी रहे, इबादत रहे कि बिल्कुल सोने में सुहागा है, अंगूठी में नगीना की तरह है। अगर आपकी आदत अच्छी नहीं, इबादत करते गए तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इबादत की कबूलियत आपकी आदत पर है, क्योंकि आपकी आदत इबादत को कबूल कराती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबके इबादत करने की तौफीक दे और सच्चे दिल से इबादत करने के साथ साथ अपनी आदतों को संभाले। सबसे बड़ी चीज आदत है। ना खानदान देखता है, ना कोई मोहल्ला देखता है, ना कोई और चीज देखता है। ये आदत नबी की सीरतों को देखता है, नबी के नक्शे कदम को देखता है। जो इंसान नबी के नक्शे कदम पे चला, नबी के तौर तरीके पे चला, चाहे वो बड़ा खानदान का रहे या छोटा खानदान का रहे, अल्लाह का प्यारा होगा। जो नबी की सीरत पे नहीं चला, चाहे नबी के नक्शे कदम पे नहीं चला, नबी की बातों पे नहीं चला, चाहे बड़ा खानदान का हो या छोटा खानदान का हो, वो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में डालता है। बेशक बेशक। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और अपने अंदर अपनी आदत, वो जगह को पूर्ण कर ले, अपनी आदतों को संवारने की,
ऊपर बैठे हुए हैं, आप ही लोग से अपील करता हूँ कि आप लोग पिंडाल के अंदर आकर बैठ जाएं। बिलाल इस्लाम आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, जितने भी मुस्लिम हैं, जितने भी हम सभी लोग हैं, हम सबसे बड़ी चीज़ है हमारी आदतें, हमारी कल्चर, हमारी नेचर, ये अच्छी होनी चाहिए, कुरान और हदीस के मुताबिक होनी चाहिए, ताकि हमारी अगर एक दान भी कर 1 रुपया तो उसकी कबूलियत का दर्जा पा ले। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अंदाज बयां यूँ तो कोई शौक नहीं है, शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।